قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم. ناظرین اکرام، یشورا اشومی ایک جاپانی سائنسدان ہیں. ان کو جب 2016 میں نوبل پرائز فار میڈیسن دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے، اور اس بات پر دنیا نے بڑے پرزور انداز میں ان کی کاوش کو سراہا اور داد دی کہ آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر یشورا اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر تلاش کر لی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے مرض سے بچا جا سکے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے. اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم میں موجود ان زہریلے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں. اس عمل کو میڈیکل کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار خلیوں سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے. جب ایسے خلیے مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا کوانٹم یا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر یشورا اشومی سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر 20-25 دن کم از کم 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے خلیوں کو کھا جائے گی اور اسے کینسر نہیں ہوگا. اے میرے پیارے رب کریم، ہمیں آج سمجھ آیا کہ مومن پر روزے فرض کیوں کیے گئے، اور آج مجھے اس حدیث کی بھی سمجھ آ گئی جس میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادات کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے. نالج فیکٹری کے دوستو، اسلام وہ دین فطرت ہے جو ہر شعبہ زیست میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے پینے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور فرمایا اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی اور تکبر کے. معزز خواتین و حضرات، انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہے جو انسانی جسم میں اتنی توانائی پیدا کر سکے جتنی توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور جس سے اس کی صحت اچھی رہ سکے اور وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کر سکے. انسانی جسم کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جسم میں داخل ہونے والا کھانا چربی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے اور اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے علاوہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ 11 مہینوں کے دوران کھانے پینے کی بے احتیاطی کے مضر اثرات کا ازالہ ہو سکے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین اکرام، قرآن کریم نے بیمار اور مسافروں کے لیے روزے مؤخر کرنے اور جو روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد روزے کی حکمت ان الفاظ میں بیان کی ہے اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. دراصل یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم حیاتیاتی علم کو سمجھو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی، نفسیاتی اور طبی فوائد رکھتا ہے. روزے کی طبی افادیت کی طرف نہایت مختصر مگر جامع اشارہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا روزے رکھو تندرست ہو جاؤ. نالج فیکٹری کے دوستوں، ہمارے نظام انہضام میں بھی غور کیا جائے تو ہمارا نظام انہضام مختلف اعضاء پر مشتمل ہے جن میں ایلیمنٹری کینال اور ہاضمے کے غدود وغیرہ شامل ہیں. اس لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پورا نظام انہضام ان کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے. انسان کو آرام کی بہت ضرورت ہے اور نیند اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن سونے کی حالت میں بھی بہت سے جسمانی افعال رواں دواں رہتے ہیں. مثلا دل، پھیپھڑے، نظام انہضام میں معدہ، آنتیں، جگر، بہت سے ہارمون اور گردے یہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور خوراک ان کی محرک ہے. اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا
کہ जिस्म के इन शोबों को बहुत ही कम आराम मिलता है। रात के खाने को हजम करते करते सुबह के नाश्ते का वक्त हो जाता है और जो लोग देर से सोते हैं वो रात को खाने के बाद भी कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। लेकिन रोजे से मैदा, आंतों, जिगर और गुर्दों को आराम का मौका मिलता है और साल के दौरान 1 माह का आराम इनकी कारकर्दगी में बेहतरी लाता है। इसके अलावा सहरी और अफ्तारी के वक्त पानी आम मिकदार से ज्यादा पिया जाता है, जिसकी वजह से सुबह शाम गुर्दों की धुलाई होती रहती है और गुर्दे मुख्तलिफ बीमारियों से पाक हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोजा गुनाहों से बख्शिश का जरिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे हालत ईमान में खालिस अल्लाह की रजा के लिए रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। दोस्तों, असरे हाजिर में कुछ लोग बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद रोजे नहीं रखते। हालांकि सेहतमंद अफराद की जिस्मानी कारगुजारी पर रोजे के किसी किस्म के मनफी असरात किसी भी मुताले में सामने नहीं आए, अलबत्ता मुस्बत असरात का पता जरूर चलता है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम अपने एक मजमून में लिखते हैं कि तंदुरुस्त अफराद में रोजे के दौरान जिस्म की अंदरूनी तवाजुन रखने वाली कारगुजारी पर कोई काबिल जिक्र असर नहीं पड़ता और पेशाब के नमकियात, तेजाब और नाइट्रोजन का इखराज मामूल की हदूद में रहता है। रोजे के दौरान टूट फूट के अमल से खून में यूरिया और यूरिक एसिड की मिकदार में इजाफा हो जाता है। ये तब्दीलियां गोश्तखोरों में ज्यादा नुमाया होती हैं। अगर रमजानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त ज्यादा शुगर, रोटी, चावल वगैरह खाया जाए तो इसका असर मुख्तलिफ होगा, यानी खून में शुगर की मिकदार कम हो सकती है। लेकिन अगर गिजा मामूल के मुताबिक रखी जाए और सहरी अच्छी तरह की जाए तो खून में शुगर की कमी का कोई इम्कान नहीं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करते थे, लेकिन मौजूदा दौर के इंसान में इस सिफ्त में कमी आ गई है, जिसके बायस मोटापे की बीमारी बढ़ती जा रही है। चिकनाई और निशास्तदार ग़िज़ाओं का बेहंगम इस्तेमाल आम हो गया है, जो बगैर जिस्मानी मुशक्क़त जिस्म में जमा होती रहती है और वज़न बढ़ता चला जाता है। जो अफराद मुख्तलिफ जदीद तरीकों से वज़न कम भी कर लेते हैं, वो जब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं तो वज़न फिर बढ़ जाता है। दरअसल इंसानी दिमाग के हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसे लिपोस्टेट कहते हैं। ये इंसान की जिसामत को कंट्रोल करता है। जब भी खुराक की इंतहाई कमी से वज़न तेज़ी से कम किया जाता है तो ये सेंटर इस तब्दीली को कबूल नहीं करता और जिस्म के वज़न को दोबारा मामूल की खुराक लेने से पहले वाली सतह पर वापस ले आता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि मोटापा दूर करने के लिए वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए ताकि लिपोस्टेट इसे कबूल कर ले, और ऐसा माह रमज़ान के दौरान 1 माह के रोज़े रखने से बआसानी किया जा सकता है। इसके अलावा कुरान पाक में बीमार और मुसाफिर को रोज़ा क़ज़ा करने की इजाज़त दी गई है, और जो रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत न रखता हो, खा बुढ़ापे के बायस या मुस्तकिल बीमारी की वजह से, इसे फिदिया देने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फिर जो तुम में से बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रख ले, और जो लोग इसे बहुत मुश्किल से अदा कर सकें वो एक मिस्कीन का खाना फिदिया दे। कुरान पाक ने क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल पेश किया है या फिर ऐसे रहनुमा असूल वज़ा कर दिए हैं जिनके जरिए तमाम अदवार के पेश आमदा मसाइल का हल तलाश किया जा सके। रोजे से मुताल्लिक भी अहकाम खुदाबंदी में बताया गया है कि रोजा रखो, ये तुम्हारी बहुत सी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है। यह इन बीमारियों के खिलाफ जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। फिर यह हुक्म दिया गया कि जिन्हें आर्जी मसला दरपेश है, जैसे अगर सफ़र पर जाना है या फिर कोई जिस्मानी आर्जा लाहक है, तो इस आर्जी रुकावट के ख़त्म होने के बाद रोज़े पूरे कर लो। यही हुक्म ख़वातीन के मखसूस अयाम के मुतालिक भी है। लेकिन अगर कोई शख्स इंतहाई बुढ़ापे और कमज़ोरी के बायस या फिर किसी ऐसी बीमारी के बायस जो बुखार वगैरह की तरह वक्ती नहीं है बल्कि मुस्तकिल तौर पर इंसान को लग गई है और रोज़ा रखने से इसमें शिद्दत का अंदेशा है, तो एक मिस्कीन का खाना बतौर फिदिया देना होगा। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, मौजूदा दौर में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हर किस्म की बीमारी को कम या ज्यादा करने वाले अवामिल सामने आ चुके हैं। इसलिए मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद को माहिरीन तिब के मशवरों पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम और डॉक्टर शाहिद अतहर ने मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में रोजे रखने या ना रखने के बारे में तफसीलन बताया है। मैं चाहता हूँ कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुँचा दी जाए। नंबर 1, शुगर के ऐसे मरीज जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं इन्हें रोजे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनकी शुगर को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके बरक्स इंसुलिन ना लेने वाले मरीजों को इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे मरीज जो सिर्फ खुराक से शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं वो रोजा रख सकते हैं। इनके मर्ज पर रोजा अच्छे असरात मुरतब करता है। दमे के मरीज जिनका मर्ज मामूली है वो तकलीफ की सूरत में रोजा तोड़े बगैर इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
या देर तक असर रखने वाली अद्वियात अफ्तार के बाद और सहरी से कबल ले सकते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर और दिल के ऐसे मरीज जो खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए तवीलुल असर दवा किफायत कर सकती है और वो रोजा रख सकते हैं, क्योंकि रोजे से वजन में कमी वाक़ई होगी और ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा। ताहम इन मरीजों को अपने डॉक्टर के मशवरे से रोजा रखना चाहिए, लेकिन शदीद हाइपरटेंशन और अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को रोजा नहीं रखना चाहिए। जिन मरीजों के गुर्दे खराब हो चुके हैं और इनके खून की डायलिसिस होती रहती है, इनमें पोटाशियम में इजाफा और वजन में ज्यादती हो सकती है। जिस्म के तेजाब में भी इजाफे का इम्कान है। अगर ये लोग रात को ज्यादा खा लें तो वजन बढ़कर नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे अफराद को रोजा नहीं रखना चाहिए। जिनका गुर्दा तब्दील हो चुका हो और इसके गुर्दे ठीक काम कर रहे हों, इनको रोजे रखने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन इन्हें अपने मुआलिज से मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। मिर्गी के मरीजों को रोजा ना रखने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह गुर्दे के दर्द और मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद के लिए रोजा रखना मुनासिब नहीं, क्योंकि पानी की कमी के बायस गुर्दे में दर्द होने का खदशा है। अल्सर के मरीज भी खाली मैदे की हालत में ज्यादा तकलीफ से दो चार हो सकते हैं। हामला और दूध पिलाने वाली औरतों को रोजा ना रखने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि इनके खून में ग्लूकोज और इंसुलिन में कमी हो जाती है। दूध पिलाने वाली खवातीन के जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, नमक और यूरिक एसिड में इजाफा हो सकता है। इसलिए बच्चे की सेहत को कायम रखने के लिए रोजा ना रखने का मशवरा दिया गया है। और आखिर में नॉलेज फैक्ट्री के तमाम दोस्तों को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हमें इस माह मुबारक की एक एक घड़ी से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।